question which is given to us is, we have a current source I1 of t, we have an inductor L, we have a resistance R, we have a capacitor C, and the current through the capacitor is I2 of t. We are required to find out the response of I2 of S. यानी कि I2 of t है, आपने इसका response find out करना. This is what we have to find out. Or so we need to find out this response. Now I2 of S, and for that, and we're also given that the circuit is in zero state. The circuit is in zero state. So the first thing that we need to do is that we need to transform this circuit from the time domain into the S domain. So this current source I1 of t will become I1 of S in the S domain. Our inductor will become LS. We are not connecting any voltage source in series with the inductor or any current source in parallel with the inductor. Why? Because the initial conditions are equal to zero as the circuit is in zero state. We have our resistance R, and then finally we have our capacitor C, and the current through this would be I2 of S. Sorry, it will be 1 over CS. It will be 1 over CS because it is in the S domain. Now, how can we find out the value of I2 of S? It is pretty simple. That by using CDR, the value of I2 of S will be equal to, it will be equal to LS divided by LS plus R plus 1 over CS into I1 of S. This is by the CDR. ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में क्या सीरीज में है, और ये वाली जो सॉरी ये जो दो इंपेडेंसेस है आपस में क्या सीरीज में, और एक इंपेडेंस ये है. तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो इसके साथ पैरेलल के अंदर, ये दोनों इसके साथ पैरेलल के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, करंट डिवाइड होगी इसके अंदर और इस ब्रांच के अंदर. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सीडीआर I2 of S will be equal to, अगर आप पास दो इंपेडेंसेस हैं Z1 एंड Z2, अगर आप पास दो इंपेडेंसेस हैं Z1 एंड Z2, ये रिप्रेजेंट कर रही है जिससे सपोजिटली Z2 को, which is a combination of, ये Z2 अगर आपके पास Z2 is equal to R plus 1 over CS, and this is representing your Z1, then according to the CDR, the value of this IZ2, यानी कि जो Z2 में जो करंट फ्लो करे, यानी कि I2 of S, this will be equal to Z1 divided by Z1 plus Z2 into I1 of S. तो वही काम मैंने यहाँ पे की है. So I2 of S is equal to LS, यानी कि Z1 divided by Z1 plus Z2 into the input current. And now what we can do is that L of S, and then denominator we will have over LCM, so we will have LCS square plus RCS plus 1 into I1 of S. This CS will go to the, this CS will go to the, क्या कहते हैं यार, numerator. So we will have LCS square divided by LCS square plus RCS plus 1 into I1 of S. अब डिनोमिनेटर को आप क्या, अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप LC से डिवाइड कर दें. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करें, LC से डिवाइड कर दें. तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव, या नीचे से LC को आप कॉमन ले लें. ठीक है, LCS स्क्वायर, अगर आप LC को कॉमन लेते हैं तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यू विल हैव S स्क्वायर प्लस R over L is plus 1 over LC into I1 of S. LC से कैंसिल हो गया. So the transform I2 of S will be equal to S square divided by S square plus R over L into S plus 1 over LC
into I 1 of s एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड ही होता था ना इसका जी, एम्पेयर सेकेंड ही होगा इसका जो यूनिट है आपके पास. So this is what we had to find out. This is what we were required to find out. In part B, we are given that if this resistance R is equal to 1 kilo ohms, ठीक है जी, to find out the value of the inductance and capacitance so that I2 of S has two identical poles at minus 5,000 radians per second. At minus 5,000 radians per second. अब वो कह रहे हैं पार्ट बी के अंदर कि आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 k है इसी सर्किट में. Find out the value of the inductance and the capacitance so that कि जो I2 का जो हमने ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, it has two identical poles at minus 5,000 radians per second. यानी कि इसके पोल्स क्या होंगे, इसके कितने पोल्स होंगे, इसकी कितनी रूट्स होंगी. ठीक है, पोल्स कहां से आते हैं, डिनोमिनेटर की रूट से. पोल्स कहां से आते हैं, डिनोमिनेटर की रूट से. ये डिनोमिनेटर इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसकी कितनी रूट्स होंगी, 2 रूट्स होंगी. अब उन्होंने क्या बोला है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टू आइडेंटिकल पोल्स एट minus 5,000 radians per second. So we have 2 रूट्स, ठीक है जी, which are equal and real, which are real and equal. तो क्वाड्रेटिक, चलें अब इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं. लेट अस फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी हमें. s स्क्वायर प्लस r ओवर l इंटू s प्लस 1 ओवर l c इज इक्वल टू 0. अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, तो s की वैल्यू क्या होंगी, माइनस r ओवर l, यानी कि माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर r ओवर l स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 into 1 over LC 4AC divided by 2A 2 into 1. अब आपको एक चीज गिवन है, वो क्या चीज गिवन है आपको, कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इट हैज I2 of S has two identical poles at minus 5,000 radians per second, यानी कि 2 आइडेंटिकल पोल्स हैं. तो आइडेंटिकल पोल्स आपस कब होते हैं, जब ये वाली जो टर्म है आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए. जब आपके पास ये जो टर्म है when this is equal to 0, तो आपस रूट्स क्या होती हैं, रियल एंड इक्वल, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, s will be equal to माइनस r ओवर 2l हो जाएगा. ये l और ये 2 ये डिनोमिनेटर से सब या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये रूट्स आ गए. लेकिन कितने के इक्वल आपको गिवन है, it's given that this is equal to over 2a minus, एक सेकंड ठहरिएगा, माइनस b, let me double check it जी, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5,000. सो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया. r की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 किलो ओम. So you are given that R is equal to 1 kilo ohm. तो यहां से आप इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. There is only one unknown, which is the inductance. So by solving, the value of the inductance will be equal to 100 millihenries. So the value of the inductance will be equal to 100 millihenries. अब आपके पास वैल्यू रह गई कैपेसिटेंस की. अब आपके पास वैल्यू किसकी रह गई, कैपेसिटेंस की. तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी किसके इक्वल है, 0. ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है. Only then the roots will be real and equal. तो क्या करना, ये वाली टर्म को 0 कर दें. So r over l square minus 4 into 1 into 1 over LC is equal to 0. अगर ये डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट शायद बोलते थे, ये अगर 0 होगा तो फिर आपस रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. तो इसको हमने कहा कि इक्वल टू 0 पुट कर दिया. आपस
अब आर की वैल्यू आपको गिवन है, इंडक्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 100 मिली हेनरीज, तो कितने हम लोग लाएंगे, सिर्फ एक, विच इज दी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, जी डेफिनेटली कर सकते हैं। सो बाय सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 400 नैनो फैराड्स, 400 nano farads. So in this question we were given a circuit, ठीक है, और उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, हमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन नहीं, लेकिन हमें इतना बताया गया कि रूट्स जो हैं ट्रांसफॉर्म की, यानी कि जो पोल्स हैं उनकी लोकेशन हमें बताई गई है फॉर द कैपेसिटर करंट। फ्रॉम दैट वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। If we recall the linearity properties from chapter number 3, we know that we learned about two different properties of the linearity. One was the homogeneity property or the scaling property, and the other one was the additivity property. ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमने सुपरपोजिशन थ्योरम सीखा था। तो अगर हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, स्केलिंग प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, उसमें क्या था, इट स्टेटेड दैट योर आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k times the input. So Laplace will be applicable over output transform can be represented as the k times the input transform. डिफरेंस कहां पे आएगा, बस छोटी छोटी चीज है, वहां पे जो k था वो क्या था, एक स्केलर, एक नंबर होता था आपके पास, रियल नंबर था, एक इमेजिनरी नंबर भी एक नंबर होता था आपके पास। लेकिन इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें, ये आउटपुट है और ये आपके इनपुट है, तो ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक k है। सो k इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ s। अगर आप इसे पिछले क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, आपकी ये यहाँ पर आपकी ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो फिर ये सारे का सारा आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास k हो गया, विच इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ s, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क फंक्शन। नेटवर्क फंक्शन यानी कि इस डोमेन में जो k होता है उसको क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क फंक्शन है, विच इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ s। दिस इज एन इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्क फंक्शन। चैप्टर नंबर 11 जो है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन गिवन है, और वो क्या है, according to chapter number 11 which is a more formal definition of the network function, the correct definition of the network function is it is the ratio of the output to the input when the circuit is in zero state। देखना यहाँ पे ये k क्या होगा आपके पास, this k will be equal to y of s over x over ratio of the output to the input, ratio of the output to the input। लेकिन एक कंडीशन क्या है इसके अंदर कि सर्किट शुड बी इन जीरो स्टेट, ठीक है। सो नेटवर्क फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन आपके पास क्या है, नेटवर्क फंक्शन relates the output and the input, it gives us the ratio between the output and to the input when the circuit is in zero state. This is called as the network function, this is called as network function। और उसके अलावा आपके पास है जी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर आप हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो आउटपुट होगा, से व्हाटएवर द आउटपुट इज, वोल्टेज है या करंट आउटपुट का जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, इन दिस डोमेन हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह, किस तरह, जीरो स्टेट प्लस जीरो इनपुट, जीरो स्टेट प्लस जीरो इनपुट। अब ये जीरो स्टेट का मतलब क्या है, जीरो इनपुट का मतलब क्या है, तो आप अगर अपने देखें इन मॉडल्स को, अब देख सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटर है या इंडक्टर है, या इंडक्टर है या कैपेसिटर है, इन दोनों के साथ देखिए एक एस डोमेन में एक अपना वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है या करंट सोर्स कनेक्टेड है। ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे इसका अपने वोल्टेज सोर्स होगा या इसका अपने करंट सोर्स होगा, which represents the initial conditions, the energy stored। Similar for the inductor, यहाँ पे इसके साथ अपना वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ से अपना करंट सोर्स होगा, which represents the energy stored in the
एलिमेंट। तो जब ये किसी सर्किट में अगर कनेक्टेड होगा, अगर ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इनपुट भी होगा आपके पास, कोई ना कोई इनपुट भी होगा, और आगे आपके पास इंडक्टर लगा होगा। ठीक है जी, तो इंडक्टर का एक अपना सोर्स, और इससे अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का भी अपने कोई ना कोई इनपुट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके पास। सो वी कैन से दैट, तो ये आपके पास हो गया L इंटू आई एल ऑफ 0, और ये आपके पास क्या होगा, दिस इज V C ऑफ 0 ओवर S। अब आप देखिए इसमें सोर्सेस की दो टाइप्स हैं, सोर्सेस की दो टाइप्स हैं। एक तो वो जो सोर्स है जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो आपने खुद कनेक्ट किया है, ठीक है, जो बाहर से कनेक्टेड, जो सप्लाई आ रही है आपको। और एक वो सोर्सेज हैं which are representing the energy stored। ठीक हो गया। अगर आप इस इनपुट को जीरो कर दें, अगर आप इस इनपुट को जीरो कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगर आप इसको जीरो कर दें तो आपस रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हो जाएगा। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स किसकी वजह से आएगा, ये जो एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, ये इन सोर्सेज से आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप इनपुट को जीरो कर दें तो आपस क्या आ जाएगा, यू विल गेट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, यू विल गेट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जिसमें हमने इनपुट को जीरो कर दिया और बाकी जो रिस्पॉन्स आएगा इट इज बिकॉज ऑफ द सोर्सेस। ये जो सोर्स है इनकी वजह से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर आप इसको कनेक्ट कर दें और इन दोनों को जीरो कर दें, अब आप जो एनर्जी स्टोर्ड है उनको जीरो कर दें, यानी आप जीरो स्टेट में सर्किट को ले जाएं, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आएगा जो एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो फिर ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा आपके पास, आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स हो जाएगा, जो आपका आउटपुट होगा, दैट विल बी इक्वल टू the zero input response, which is because of these sources which are the energies, जो sources which the sources which represent the stored energy, plus जब आप इनको टर्न ऑफ कर दें और आप इस वजह से रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लें which is the input, तो ये आपस क्या आ जाएगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स किस तरह फाइंड आउट करना है आपने, कि आपने जो सोर्सेज आपस आप कनेक्ट करते हैं, जो इंटरनल एनर्जी को शो करते हैं, आपने उनको टर्न ऑफ कर देना। जो इंटरनल एनर्जी को शो करते हैं आपने उन सोर्सेज को टर्न ऑफ कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आप अपने इनपुट को जीरो कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब दोनों को आपस में ऐड अप करें तो आपस ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा। तो आप इस तरह बाय यूजिंग सुपरपोजिशन आप क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट का रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो स्टेट प्लस जीरो इनपुट। क्वेश्चन है जी अब आपके लिए कि you have I1 of S which is the input, you have resistance R, you have an inductor LS, you have a capacitor 1 over C2, and this is V2 of S। ठीक है, वो कहते हैं जी find out the network function which relates V2 of S and input current I1 of S. This is output and this is the input. Find out the network function which relates the output to the input. Find out the network function which relates the output to the input. यानी कि मतलब क्या हुआ, हमें फाइंड आउट क्या करना, वी हैव टू फाइंड आउट V2 of S over I1 of S. This is what we have to find out. This is what we have to find out. तब हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं जी, इसको फाइंड आउट करने का बड़ा एक आसान तरीका हमारे पास, और वो क्या है हमारे पास, let us say that the current here is I2 of S. This current is say I2 of S. Then by using CDR, I2 of S will be equal to R divided by R plus LS plus 1 over CS, 1 over
सी एस, 1/CS इंटू आई 1/S। ये दोनों क्या आपस में सीरीज के अंदर, ये LS और 1/CS आपस में क्या सीरीज के अंदर है, ये आर्म से पैरेलल के अंदर है, तो CDR लगा सकते हैं। तो CDR जब लगेगा तो आपस इस ब्रांच की करंट आ जाएगी, तो आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह ही किया है जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर मैंने CDR अप्लाई किया, जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर मैंने CDR अप्लाई किया था। ये पिछले क्वेश्चन के अंदर C10 पेज 8 के ऊपर जिस तरह मैंने CDR अप्लाई किया था, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे मैंने CDR अप्लाई कर दी है। तब जाके पीछे से थोड़ा रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो। तब आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर एलसीएम ले लें मुझे डिनोमिनेटर के अंदर। CS आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई 1/S। सो ये जो RCS है ये ऊपर आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यू विल हैव RCS डिवाइडेड बाय RCS, या इस तरह कर लेते हैं, LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1 इंटू आई 1/S। ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास इस करंट की वैल्यू आ गई। अब V2/S क्या है, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 1/CS। देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V2/S किसके इक्वल होगा, V2/S किसके इक्वल होगा, दिस इंपेडेंस इनटू द करंट। ये जो इंपेडेंस है आप इसको करंट के ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्रॉस वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म आपके पास आ जाएगा। ये V2/S क्या है, इस 1/CS से क्रॉस वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रही है, I2/S। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इंपेडेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वोल्टेज आ जाएगी, यस आ जाएगी। सो इट विल बी 1/CS इनटू I2/S। I2/S यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास V2/S किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/CS into RCS divided by LCS square plus RCS plus 1 into I 1/S। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये CS से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये CS से कैंसिल हो जाएगा। ये जो I2/S, ये V2/S है, और जो I1/S है ये क्या हो जाएगा, दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये I1/S दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बस क्या आ जाएगा, V2/S over I1/S। तो ये नेटवर्क फंक्शन बन गया अब आपके पास। सो दिस विल बी इक्वल टू R over LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से LC को कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में से LC को कॉमन ले लें, तो आपका क्या आ जाएगा, R डिवाइडेड बाय LC कॉमन ले लिया, तो आपका क्या आएगा, S स्क्वायर प्लस R over L S प्लस 1/LC प्लस 1/LC। ये जो LC है ये आपस क्या करेगा, आप इसको ले जाइए ऊपर न्यूमरेटर में ले जाइए आप, तो आपस फिर नेटवर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, तो ये नेटवर्क फंक्शन V2/S over I1/S will be equal to R, ये R डिवाइडेड बाय LC। तो ये आपको क्या आ जाएगा फिर, दिस विल बी, ये R, ये जो है R डिवाइडेड बाय LC, ये ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। पास आपको क्या आ गया, R ओवर LC डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस R ओवर LS प्लस 1/LC, S स्क्वायर प्लस R ओवर LS प्लस 1/LC। So this is what was required to be found out. This is the network function and obviously the circuit was in zero state. ठीक हो गया। इसके बाद जी अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the next question we are given that we have a current source IA, we have a current source IA, we have a switch
we have an inductor L, we have a resistance R, we have a capacitor C, and what we have to do is that we have to find out, और यहाँ पे जो करंट है this is IR of t, we have to find out the response of the resistance current. We have to find out the response of this resistance current, and we are given that this switch has been in position A for a very long time, and then it moves and then it opens at time equal to 0. This switch has been closed for a very long time and then it opens at times equal to 0. So we have to find out the response of the circuit accordingly. ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने इसको लेके जाना है अपने उसके अंदर एस डोमेन के अंदर. ठीक है, सबसे पहले आपने इसको क्या लेके जाना है जी? इनटू द एस डोमेन. The first thing that we need to do is that we need to take this circuit into the S domain. और हमने इसको S domain के अंदर लेके जाना है, तो obviously हमें इंडक्टर और कैपेसिटर की इनिशियल वैल्यू का पता होना चाहिए. हमें कैपेसिटर और इंडक्टर की इनिशियल वैल्यू का पता होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We will draw the circuit at times equal to 0 minus. तो हम इसको ड्रॉ करते हैं टाइम इक्वल 0 माइनस, आपके पास क्या हो जाएगा? यू विल हैव IA. The switch has been closed for a very long time. If the switch has been closed for a very long time, it means that your inductor will be fully charged. Your inductor will be fully charged. If the switch has been closed for a very long time, your inductor should be fully charged. So when inductor fully charged हो गया तो वो क्या होगा? It will be replaced with a short circuit. It will be replaced with a short circuit. और आगे आपके पास आ गया ये रेजिस्टर, और सपोजली कह लें लेकिन कैपेसिटर आपको फुली चार्ज नहीं होगा, तो फुली डिस्चार्ज होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर आपका फुली डिस्चार्ज होगा. अब ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया. इंडक्टर इज फुली चार्ज, स्विच क्लोज्ड है, इंडक्टर इज फुली चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ? ये जितनी भी करंट है वो यहीं पर फ्लो करेगी, इस तरफ करंट जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट है. सो ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट. जब यहाँ पे करंट जा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपकी इंडक्टर की जो करंट है IL of 0 दैट विल बी इक्वल टू IA. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो जितनी भी करंट आ रही है सारी की सारी कहां से फ्लो कर जाएगी? इंडक्टर में से फ्लो कर जाएगी. तो आपके पास IL of 0 क्या होगा? इक्वल टू IA. अब कैपेसिटर की तरफ देखिए कोई करंट जा ही नहीं रहा. ठीक है, इस रेसिस्टर में कोई करंट जा ही नहीं रहा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, इस तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. So you can say that your capacitor will be equal to, capacitor voltage will be equal to 0. Your capacitor voltage will be equal to 0. It will be fully discharged. अगर जहां पे कोई करंट नहीं जा रहा उसको चार्ज करने के लिए, तो वो fully discharged होगा आपके पास. ठीक है, सो इस तरह हमने क्या किया? इसके अपने इनिशियल कंडीशंस को फाइंड आउट कर लिए. सो वी हैव फाउंड आउट आवर इनिशियल कंडीशंस. The next step is we will transform our circuit for time greater than or equal to 0. ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमने टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? सर्किट को पहले टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ड्रॉ करते हैं. ठीक है जी, मैं क्या करता हूं? सर्किट को टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करता हूं. मेरे पास क्या आ गया? मेरा ये करंट सोर्स आ गया IA. ये स्विच ओपन हो गया यहां से, यहां पे ये मेरा इंडक्टर आ गया, ये मेरा रेजिस्टर आ गया, और ये मेरा कैपेसिटर आ गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विच ओपन हो गई, ओपन सर्किट हो गया, तो ये इंडक्टर में तो कोई करंट फ्लो अप करेगा ही नहीं. तो ये इंडक्टर क्या हो गया? सर्किट से बाहर चला गया. अभी जो इंडक्टर है ये सर्किट से आपको क्या हो गया? ये बाहर चला गया. तो बाकी आपका सर्किट क्या बचा? बाकी आपका सर्किट बचा IA. दिस इज फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आपके पास बाकी क्या बचा? यू विल हैव वन रेजिस्टर, you will have one capacitor, and the current here is IR of t. The current here is IR of t. Now let us transform this circuit into the S domain. Now let us transform this circuit into the S domain. जब मैं इसको S domain में लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? सर्किट तो वही रहेगा,
एक करंट सोर्स भी लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टर भी लगाना पड़ेगा और यहां पर एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, जब आप इस करंट सोर्स को लेके जाएंगे इनटू द एस डोमेन तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का एस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 ओवर एस, तो एस डोमेन में जाकर पास क्या हो जाएगा, इट विल बी आई ए ओवर एस। रेजिस्टेंस जब जाती है इस डोमेन में तो रेजिस्टेंस वैल्यू आर ही रहती है, सो इट विल रिमेन टू बी आर। और जहां तक आपकी ताल्लुक है इस कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर जब एस डोमेन में जाता है तो क्या हो जाता है 1 ओवर सी एस, सो दिस विल बिकम 1 ओवर सी एस। और इसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे, वजह क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज क्या है टाइम्स इक्वल टू जीरो। जब इनिशियल वोल्टेज है ही नहीं, जब उसमें एनर्जी स्टोर्ड है ही नहीं है, इसका मतलब क्या उसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं होगा, तो बस क्या बन जाएगा 1 ओवर सी एस। और फिर यहां पे जो करंट है दिस विल बी आई आर ऑफ एस, दिस करंट विल बी आई आर ऑफ एस। नाउ this is chapter 10 page 10. So again by CDR the value of IR of S will be equal to, the value of IR of S will be equal to 1 over CS divided by R plus 1 over CS into IA over S, 1 over CS डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम ले लिया आपने, सी एस आ गया, सो पास आ गया आर सी एस प्लस 1 इंटू आई ए ओवर एस। ये सी एन से कैंसिल हो गया, तो बाकी आपका क्या बचा, यू विल हैव 1 ओवर आर सी एस प्लस 1 इंटू आई ए ओवर एस, 1 ओवर आर सी आप कॉमन ले लेता, क्या आ जाएगा एस प्लस 1 ओवर आर सी इंटू आई ए ओवर एस, सो दिस विल बिकम आई ए ओवर RC divided by S into S plus 1 over RC amperes second. So this is the transform of IR of S. और अगर मैं आपसे बोलूंगा आप इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टाइम डोमेन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, K1 over S plus K2 over S plus 1 over RC, और आगे आप उसका इजीली इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं जी। We are given that we have a voltage source which is VA U of t, we have a resistance R, we have an inductance L, we have a capacitor C, and this is the output voltage. We are given that the initial value of the capacitor voltage is equal to 0 and the value of the initial current across the inductor is equal to I naught. What we have to do is that we have to find out the zero input response and we have to find out the zero state response. We have to find out the zero input response as well as the zero state response of this output voltage. The first step that we're going to do is that we're going to transform the circuit from the time domain into the S domain. So let us draw and transform the circuit from the time domain into the S domain. First of all comes our voltage source. The input is VA U of t. So in the S domain it will be VA over S. It will be VA over S. Then comes our resistance and it remains R in the S domain. Then comes our inductance. So the inductance becomes L into S. And then we have a voltage source in series with the inductance. और इसकी वैल्यू क्या होती है L into IL of 0. ठीक है। Then comes our capacitance जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 over CS. इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 over CS. एंड साथ में सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा, लेकिन हमें गिवन क्या है कि इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर की कितनी है 0, तो इसके साथ जो वोल्टेज सोर्स है वो भी क्या होगा ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो हमने क्या किया उसको यहां से रिमूव ही कर दिया। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट वुड बी द ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। So we have to find out the zero input response as well as the zero state response.
अब जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है वो कब आएगा, जब आप इसको जीरो कर दें, और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कब आएगा आपके पास, जब आप इसको, इस सोर्स को जीरो कर दें। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना जीरो इनपुट रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट द जीरो input response. For that we will turn off the input, we will turn off the input. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इनपुट को टर्न ऑफ कर दिया। Then I have my resistor, my inductor which is LS, my voltage source plus minus L into I naught, L into I naught, क्योंकि IL of zero कितना गिवन मुझे, I naught. Then comes my capacitance which is 1 over CS, और इससे क्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी दी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, दैट विल बी दी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स इन दी एस डोमेन। ठीक है जी, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। अब ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है जी। ठीक है, इंतहाई इजी है। ठीक हो गया, ये किस तरह इजी है जी, वो इस तरह इजी है कि आपको क्या गिवन है, आपको वोल्टेज सोर्स गिवन, आपको वोल्टेज सोर्स गिवन, तो आप इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस से दैट दिस इज I of S, this I of S will be equal to, this I of S will be equal to L into I of 0, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स है डिवाइडेड बाय जितने भी इंपेडेंसेस हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑल दी इंपेडेंसेस। ये देखिए ना, जिस तरह ये वोल्टेज सोर्स लगा हो आपके पास प्लस माइनस V1 और 1 2 और ये 3, मतलब 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं R1 R2 और R3। तो ये जो करंट आई होती है, करंट आई किसके इक्वल होती है, दिस आई विल इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक हो गया जी। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स और 3 इंपेडेंसेस हैं, तो आपने अगर करंट फाइंड आउट करनी है, करंट ट्रांसफॉर्म आप क्या करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे बाय ऑल दी इंपेडेंसेस। ये L I ऑफ नॉट से आपने कंफ्यूज नहीं, ये करंट है, ये करंट नहीं है, ये बल्कि वोल्टेज की वैल्यू है L into I नॉट। सो डिवाइडेड बाय 1 over CS प्लस R प्लस 1 over सॉरी प्लस एल एस। ठीक हो, यहाँ पास आगे जी करंट की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आप क्या करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अपना वो आप एलसीएम वाला ले लें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत एलसीएम वाला यहाँ पे ले लीजिए। सो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम L into I naught CS 1 plus RCS प्लस LCS स्क्वायर। ये जो CS है ये आपस क्या करेगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको हम ले जाते हैं। चले, हाँ जी, इसको हम करते हैं, हम इसको ले जाते हैं जी अपने न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव L into I naught, L into I naught ओवर CS डिवाइडेड बाय 1 प्लस RCS प्लस LCS स्क्वायर। ठीक हो गया जी, LCS स्क्वायर। ये कुछ इस तरह ही आपके पास बन जाएगा जी। जी बिल्कुल, ये आपके पास कुछ इस तरह की ये सूरत हाल यहां पर बन जाएगी। ठीक हो गया जी, नहीं ठीक नहीं हुआ जी, ये जो CFS है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। सो वी विल हैव L into I naught into CS divided by 1 plus RCS प्लस LCS स्क्वायर। तो ये आपस क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो फिर अब ये V2 VZ of IF, ये जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, आप इस इंपेडेंस को करंट से मल्टीप्लाई करें तो आपस ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जब करंट की वैल्यू आ गई आप उसको इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्रॉस पर वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। सो V जीरो इनपुट रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू 1 over CS into I of S। I of S को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, तो पास क्या आ जाएगा 1 over CS into L I naught CS डिवाइडेड बाय LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। इसको मैं रीअरेंज करके लिख लिया। सो ये CS से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, CS से कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में आप LC को कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में आप LC को कॉमन ले लें। सो आपका जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, योर बी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू, ठीक है,
L इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने एलसी को क्या किया, कॉमन ले लिया, सो एलसी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में पास क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस आर ओवर एल इंटू एस प्लस 1 ओवर एल सी। ये एल एल से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या आ गया, इट विल बी आई नॉट ओवर सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस आर ओवर एल इंटू एस प्लस 1 ओवर एल सी। ठीक हो गया जी। ये आपके पास क्या आ गया जी, आपका जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स सेकेंड्स, यूनिट्स आपने नहीं बोलना है। अब हमने फाइंड आउट करना है जी अपना जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। नाउ लेट अस फाइंड आउट ओवर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, अपने जो इनिशियल कंडीशन को जीरो कर देंगे, यानी कि आप इस वोल्टेज सोर्स को जीरो कर देंगे, इसको टर्न ऑन रहने देंगे, इसको ऑन ही रहने देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो विल हैव प्लस माइनस वी ए ओवर एस इंटू आर इंटू एल ऑफ एस एंड वी हैव 1 ओवर सी एस, और यहां पे आपस क्या हो जाएगा, बी जीरो स्टेट का रिस्पॉन्स। अब आपने क्या किया, आपने इनिशियल कंडीशन को सेट जीरो कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब ये तीनों डिवाइसेस आपस में क्या है, सीरीज में, एक वोल्टेज सोर्स है, वीडीआर लगा सकते हैं। यहां पे मैंने दो स्टेप्स के अंदर इसको किया था, मैंने पहले करंट फाइंड आउट की और फिर मैंने ओम्स लॉ यूज किया। हालांकि यहाँ पे भी मैं वीडीआर के थ्रू कर सकता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वीडीआर के थ्रू कर लूं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी वीडीआर लगा सकते थे आप, लेकिन अब यहाँ पे भी जिस तरह पहले की है, आप यहाँ पहले करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ओम्स लॉ यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसने पहले किया था। लेकिन मेरा अब दिल करेगा मैं यहाँ पे क्या करूं कि VDR यूज करूं। सो बाय यूजिंग VDR, V जीरो स्टेट रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर CS, जिसके क्रॉस फाइंड आउट करें वोल्टेज डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय सारी इंपेडेंसेस का इक्विवेलेंट, सो R प्लस LS प्लस 1 ओवर CS इनटू द इनपुट वोल्टेज विच इज VA ओवर S। सो ऊपर आ जाएगा प्लस 1 ओवर CS डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम आएगा CS, सो RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1 इंटू VA ओवर S। ये जो CS है, इस CS के साथ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो योर B। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप LC को कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या करें, LC को कॉमन ले लें यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर, तो आपके पास V जीरो स्टेट का रिस्पॉन्स आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर LC कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, S स्क्वायर प्लस R ओवर L इंटू S प्लस 1 ओवर LC इंटू VA ओवर S। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख दिया मैंने, तो बाय रीअरेंजिंग इट विल बिकम VA ओवर LC डिवाइडेड बाय S इंटू S स्क्वायर प्लस R ओवर LS प्लस 1 ओवर LC वोल्ट्स सेकेंड्स, वोल्ट्स सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सो नाउ आई हैव फाउंड आउट माय जीरो इनपुट रिस्पॉन्स as well as my zero state response. I have found out my zero input response as well as my zero state response. मैंने दोनों के की रिस्पॉन्स यहाँ पे अपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब यहां से कुछ हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डिड्यूस कर सकते हैं जी, हम यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी अपनी डिड्यूस अब कर सकते हैं जी।